Hello dear students, very good morning to all of you. Dear students, when we check in previous day doubt questions, so we find out that our sections B, question number 7, I, much more student query. So today we will be discuss 7I questions first of all. After on it, we will be discuss question number 8 and last times higher order thinking skill questions. Okay, so let's start. I question says that 9x square minus का 25y square plus का 60 minus का 36 upon 3x plus का 5y minus का 6. यहाँ देखिएगा, here 9x square, here minus 25y square, but here plus का 60y minus का 36. What will we do? Here we can write down if 9 3 square x power 2 means 3x का whole square. If we take here a square, here b square, so a square plus b square plus का 2ab. We want to make the identities. हम identities बनाने की कोशिश करेंगे. So we already write down the questions. Now we can write down 9x square in 3x का whole square. Okay, here negative sign, here positive sign, here negative sign. When we take negative sign common, because we know that very well our identities is a square plus b square minus 2ab or a square plus b square plus का 2ab. Two types our identities. So when we take negative sign common, here 25 y square, and when we multiply negative in positive, get the negative 60y, and minus multiply minus get the plus का 30 का 6 upon denominator write down same, no changes in denominator. Our question says that only you solve or factorize numerator and solve them. So 3x square, similarly we write down, but now we want to convert 25y square in 5y का whole square minus 2 a position 5y b position. You can write down 36 means 6 का square, a square plus का b square minus का 2a and b. Okay, and write down here 3x plus 5y minus का 6. Now with the help of identities, you put the value of these identities. Here 3x square minus a square plus b square minus 2ab means a minus का b, 5y minus का 6 का whole square upon 3x plus का 5y minus का 6. 3x square represent a square, 5y minus का 6 represent b square, means we apply again a square minus का b square. So we can write down a is equal to 3x, b is equal to 5y minus का 6. With the help of identities, a square
minus b square is equal to a plus b, a minus b. Okay, we put value a value 3x plus b value 5y minus का 6. Second, a minus b, a value 3x minus b value 5y minus 6, 5y minus का 6. We use big bracket upon our denominator 3x plus 5y minus का 6. Now we multiply in negative sign in the bracket. Okay, but these terms we write similar, there will be no changes in these terms. Here 3x minus का 5y, when we multiply minus in minus we get the plus का 6. Denominator right and right denominator similarly, no changes. Now plus का 3x plus का 3x plus का 3x plus का 5y plus का 5y minus का 5y minus का 6 plus का 6 means we can write down or we can say that here 3x plus का 5y plus का 5y minus का 6 numerator and denominator both are equal and meet to each other, so we cancel numerator and denominator. What our value remaining? Our value remaining 3x 5y minus का 3x minus 5y plus का 6. It is our actual result, or we can say that our answer. Dear students, we want to one time more revision. First of all, you have provided the value 9x square minus का 25y square plus का 60y minus का 36 upon का 3x plus का 5y minus का 6. Okay, here we can write down 9x square 3x का whole square minus 25. Here we take the negative sign, positive sign, negative sign. We have the value, our formula we know that a square plus का b square minus का 2ab or a square plus का b square plus का 2ab. You can see that here plus का a square and plus का b square means we cannot say here minus का b square or here minus का a square. A square and b square already positive value, may be minus का 2ab plus का 2ab. It is depend upon the middle terms or identities. Okay, so here we take the negative sign common. When we take negative sign common, minus 25y square maintain. When we take minus common, so minus maintain the plus 25y square. Okay, when we multiply negative in positive, negative 60y and minus का plus का 36. Okay, we can write down 36 6 का square and 25y 5y का whole up square minus, you know very well in negative identities, a square plus b square minus का 2ab, a minus b whole up square, a square means 5y square plus b square means plus का 6b square, 6b नहीं 6 square minus 2ab minus 2a position 5y, b position 6, and upon there will be no changes in denominator. And 3x square we can write down similarly, and 5y minus का 6 का whole up square, because this is a square, a plus b, sorry a minus b identities based follow. Here 3x square also represent a square value and 5y minus 6 always represent the b square value. So we again apply a square minus b square, but we talk the value of a value 3x and b value 5 minus का 6. Okay, so in the one bracket we add, in second bracket we subtract. When we add 3x plus 5y minus का 6, and when we subtract 3x minus का 5y minus का 6 and divided 3x plus का 5y minus का 6. Here numerator and denominator match to each other, so we cancel and the value remaining, this is all the actual result.
अगर हम हिंदी की बात करें तो सर्वप्रथम जो है हम इस टर्म्स को, टोटल जो 3 टर्म्स ट्रिनोमियल्स का, इस टर्म्स को क्रैक करके a माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर पे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। पुनः ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम अप्लाई करके एक बार ब्रैकेट में वैल्यू को जोड़ देंगे, दूसरी बार ब्रैकेट में वैल्यू को घटा देंगे। ओके, ये प्रोसेस है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। अब क्या कहा है क्वेश्चन सेट में, देखने के बाद क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, in the question number 8 says that a rectangular fields, what said, says a rectangular field means प्रश्न में कहा है कि एक आयताकार मैदान है। तो आप आयताकार मैदान बनाएं, हम लोग आयताकार मैदान बनाते हैं। अगर आयताकार मैदान की बात करें तो यू नो दैट वेरी वेल द रेक्टेंगुलर पेरीमीटर, रेक्टेंगुलर पेरीमीटर 2l प्लस का b मीन्स लंबाई प्लस का चौड़ाई, लेंथ प्लस विड्थ। बट वी टॉक अबाउट द एरिया, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो लेंथ गुणे ब्रेथ। यह रेक्टेंगुलर का फॉर्म्स है और आप जानते हैं लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, ब्रेथ इज इक्वल टू ब्रेथ। तो कहा था ए रेक्टेंगुलर फील्ड्स, एक आयताकार मैदान, हैज़ एरिया 5x स्क्वायर प्लस 17x प्लस का 6 मीन्स वाट यू विल बी प्रोवाइडेड, यू विल बी प्रोवाइडेड वैल्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया और परिमाप में अंतर समझते हैं। अगर इसका एरिया निकालना होगा तो इस फिगर से क्या रिलेटेड होगा, एरिया मतलब इस अंदर वाले पार्ट को कहेंगे, ठीक है, इस अंदर वाले पार्ट को एरिया कहेंगे, क्षेत्रफल। लेकिन पेरीमीटर का मतलब कि आप यहाँ से चलें, घूमते घूमते यहाँ पहुँचे इस कॉर्नर पे, यहाँ से इस कॉर्नर पे, यहाँ से इस कॉर्नर पे, पुनः इस कॉर्नर पे। परिमाप, पेरीमीटर मीन्स होता है परिमाप, परि मीन्स चारों ओर मापना, माप मीन्स मापना, परिमाप। तो यहाँ पे एरिया दे रखा है मीन्स अंदर के भाग को दे रखा है, ठीक है, अंदर के भाग को दे रखा है। तो एरिया कितनी है इस रेक्टेंगुलर फील्ड की, तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस का 17x प्लस का 6। यह आपकी एरिया हो गई है किसकी, रेक्टेंगुलर फील्ड की। यह एरिया हो गई रेक्टेंगुलर फील्ड की। तो आपसे क्या पूछा है प्रश्न में, कहता है कि फाइंड्स इट्स साइड, इसकी साइड को निकालिए। क्या निकालिए, साइड को निकालिए। तो साइड कैसे निकलेगा स्टूडेंट, देखें, आप जानते हैं कि यह लेंथ है, यह ब्रीथ है, आपको एरिया दिया हुआ है ना, कैमरा सही नहीं दिखलाई दे रहा है सही से, अब ओके। आप जानते हैं कि रेक्टेंगल्स का क्या एरिया होता है, इसको उसके इक्वल इसको रखते हैं और फैक्टराइजेशंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो रखेंगे, केवल एरिया ही दिया है, रेक्टेंगुलर फील्ड्स हैज़ एरिया स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट दिया है जी, मीन्स 2 टाइम्स, ठीक है, जैसे होता नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, वही प्रोसेस है। तो एरिया बराबर लेंथ गुणे ब्रीथ, लेंथ गुणे ब्रीथ मीन्स लेंथ का ब्रीथ के साथ अगर गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू, यू हैव द प्रोवाइडेड वैल्यू 5y स्क्वायर प्लस का 17x प्लस का 6। नाउ वी फैक्टराइज, ओके, here 5, here 6, 5 6 are 30, but we want to maintain 17, तो 2 2 जा 4 and 4 सॉरी 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, ओके, मीन्स 2 3 जा 6 6 5 जा 30,
और मेंटेन कितना करना है 17, प्लस का मेंटेन करना है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, मीन्स प्लस हमको करना होगा। तो 5 3 जा 50, 5 3 जा 50 एंड व्हेन वी ऐड 50 एंड 2 वी गेट 17। ओके, मीन्स 15 में 2 को अगर जोड़ देंगे तो 17 आ जाएगा। अब कोई नहीं पूछेगा कि कहाँ से आपने लाया, 30 का फैक्टराइजेशन किया, 2 3 जा 6 5 जा 30। ओके, तो 5x² प्लस 50 प्लस का 2x प्लस का 6, हियर 5x² प्लस का 50x प्लस का 2x प्लस का 6, यह लंबाई गुणे चौड़ाई के इक्वल चल रहा है। तो लेंथ गुणे ब्रीथ इज इक्वल टू 5x² और यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे x2 टाइम है, यहाँ पे x1 टाइम है, हियर x1 टाइम, हियर x2 टाइम, सो वी टेक 1 टाइम x कॉमन एंड हियर 5 1 टाइम, हियर 5 may be are the 5 multiple of 15 means 5 3 ja 15, here also available 5, here also available 5, so we take the common 5. When we take common 5 x2 time x1 time remaining x plus here 15x and we already taking the HCF 5x, x cancel, 5 3 ja 15. You know very well that our one bracket value x plus 3 and the next bracket value should be x plus 3 because our variable constants and sign be similar in the next terms. Okay, so here plus we take the plus sign common and we want to find the value x, हमको x लाना है। okay, our value 2x, so we taken the common 2. When we divided 2x by 2 we get the x plus 2 3 ja का 6, here x plus 3 we taken the common x plus 3. When we take the common x plus 3, here remaining the terms 5x and here 2x plus 3 we take the common x plus 3 and remaining value 5x plus का 2, means we can write down length गुणे breadth is equal to x plus 3 5x plus का 2, length गुणे breadth, it is our area, लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू आपको मिल गई है। बट हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, कह रहा है कि फाइंड इट्स साइड, इनके साइड को आप निकालिए। तो साइड को निकालना है इस वे में आप क्या करेंगे जानते हैं, आपके पास एक ऑप्शन है, ऑप्शन का मतलब x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या रखिए 0, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखिए तो x बराबर माइनस का 2 अपन का 5 आ जाएगा। और इसको चेक करने के लिए हमको आंसर शीट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, आंसर शीट पे तो रुके रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 रुके रहिएगा। सेवन है, 7 का क्वेश्चन नंबर 8, केवल बस x प्लस 3 8 देख रहे हैं, 8 का x प्लस 3 5x प्लस 2 दे दिए हैं और लेंथ ब्रीथ x प्लस 3 5x प्लस 2 यहीं पे लाकर छोड़ दिए हैं। यही इसकी क्या हो जाएगी साइड, यहीं पे छोड़ दिए हैं। अगर और भी बातें करते, अगर b को निकालने के लिए कहते तो l का मान दे तो b भी निकाल सकते थे हम लोग। अगर हमको l दिए होते तो b का भी मान निकाला जा सकता था भाग देकर, बट कुछ वैल्यू दी नहीं गई है, केवल इतनी तक बातें दी गई थी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस था। ओनली यू हैव द गिवन वैल्यू एरिया वैल्यू यू हैव प्रोवाइडेड एंड यू नो दैट वेरी वेल द रेक्टेंगल्स एरिया लेंथ गुणे ब्रीथ, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है एरिया की। तो a बराबर LB और
जो वैल्यू प्रोवाइड की गई थी आपने उसका फैक्टराइजेशन किया, वही लेंथ और विड्थ जो है लेंथ विड्थ का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वही उसकी क्या होगी, साइड होगी। ठीक है, अब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। रुकिए रहिएगा। ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चंस दिया हुआ है, कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी, सी का क्या मान होगा। मीन्स किसी भी सिचुएशंस में हमको सी की वैल्यू चाहिए, हमारा प्रश्न ऐसा है। द फैक्टर ऑफ, यह वैल्यू दी है, इसका फैक्टर निकालना है। मीन्स x पावर 2 माइनस का 6x 81 अपान का 16। ठीक है, देखें हमको c का वैल्यू चाहिए, मिडिल टर्म चाहिए। यहाँ एक्स स्क्वायर दे दिया है, लास्ट की वैल्यू दे दी है, बट पूछा है कि मिडिल टर्म्स में क्या होगा। तो आप जानते हैं कि यहाँ प्लस साइन यूज़ हुई है, यहाँ प्लस साइन यूज़ हुई है, यहाँ पे मिडिल टर्म्स निगेटिव है। तो आपके पास दो ही आइडेंटिटीज़ हैं, एक a प्लस बी के फॉर्म में है, एक a माइनस बी के फॉर्म में है। तो a प्लस बी के फॉर्म का आइडेंटिटीज़ यूजेस नहीं होगा। वाई यू डज नॉट use the a plus b because our middle terms the negative, what negative, हमारा मिडल टर्म्स क्या है, नेगेटिव है। तो हम a माइनस बी का फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। सो वी कैन राइट डाउन a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2a एंड b ना। ओके, तो इसी प्रोसेस पे हम यहाँ देखें इसको। सिमिलरली प्रोसेस वी कैन राइट डाउन एक्स स्क्वायर माइनस का 6x 81 अपान का 16। डियर स्टूडेंट्स, आप इंसेक्ट से, ये जो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, आप इनसे डिस्टर्ब मत होइएगा। ठीक है, इसके लिए सॉरी, बट आज जो है इमरजेंसी लाइट के साथ साथ एक लाइट के ही यूजेस किए गए हैं और उस वे में थोड़ी परेशानियां हैं। अगर चारों तरफ लाइटें यूज़ की जाती तो इंसेक्ट जाते डिस्टर्ब करते, और नाइट का सेशन है। इस वे में अभी भी एक लगभग महीने तक ये प्रोसेस रहेगा। जैसे ही ठंडी तो बिगनिंग हो चुकी है, ठीक है, ठंडी की बिगनिंग हो चुकी है, बट इंसेक्ट जो 1 महीने तक डिस्टर्ब करेंगे, उसके बाद सही हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे आइडेंटिटीज़ पे फॉलो करवाएं इसको। तो a स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस, ओके रहने देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर मीन्स यू कैन राइट डाउन 81 you can write down 9 and 16 you can write down 4 का whole up square, means 9 2 time multiply get the 81 and 4 multiply 2 time get the 16. okay, then a square plus b square माइनस का 2a पोजिशन x, b पोजिशन 9 अपान का 4. you can write down here a is equal to x, b is equal to 9 अपान का 4 and 2ab is equal to 2 multiply x multiply 9 by 4. okay, here 2 here 4, so 2 2s are 4, means you can write down x square माइनस का 9 मल्टीप्लाई x 9x बाई 2 प्लस का 9 अपान 4 होल पावर 2. what your question says that? your question says that find the value of c. find the value of c. c का ही मान चाहिए था ना,
तो सी के पोजीशन पे x तो है ही, जाने दीजिए इसको, क्योंकि x का मान यहाँ पे तो है ही, केवल c का मान चाहिए। c का यह माइनस दिया है ऑलरेडी, तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है। यहाँ पे x दिया है तो आपका x है, लेकिन कह रहा था c का मान निकालिए, तो c का मान कितना है 9/2। लिखेंगे when we comparison, when we comparison, when we comparison, हमको किसका वैल्यू चाहिए, माइनस का cx का ना। when we comparison middle terms of the equation then, जब हम मिडिल टर्म्स का हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे सभी समीकरण में, तब हम क्या पाएंगे, मिडिल टर्म्स यहाँ पे कितना है माइनस का cx, कितना है माइनस का cx, और यहाँ पे मिडिल टर्म्स कितने, यहाँ पे मिडिल टर्म्स माइनस का 9/2x, माइनस का 9/2x, और यहाँ पे माइनस का cx ना। तो इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल किया जाए। ओके, क्या बचा, cx इज इक्वल टू 9/2x एंड वी कैंसिल x एंड x, व्हाट योर रिमेनिंग वैल्यू, c इज इक्वल टू 9/2। तो यह प्रश्न हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के समाप्त हुए। c का जो रिजल्ट आएगा वह 9/2 आएगा। प्रश्न में क्या कहा था, प्रश्न में आपसे कहा था कि c का मान निकालिएगा when x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 81/16। ओके, सो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। इसी फार्मूले पे हम अप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि मिडिल टर्म्स निगेटिव साइन है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो एक्स स्क्वायर को हमने एक्स स्क्वायर ही मेंटेन किया, माइनस का जो भी मिडिल टर्म्स लाना था अभी इसको रोक दिया गया है, बट 81/16 को वी कैन राइट डाउन 9/4 का होल ऑफ स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो बी पोजीशन पे 9/4, ए पोजीशन पे x, उसी वैल्यू को लिखा गया है। तो a बराबर x, b इज इक्वल टू 9/4, 2ab इज इक्वल टू 2 × x × 9/4, उसी वैल्यू को यहाँ पे रखें। तो मिडिल टर्म 9/2x है और मिडिल टर्म माइनस का cx है, तो दोनों का कंपेरिजन कर लेते हैं। तो माइनस का 6x इज इक्वल टू माइनस का 9/2, ओके, और उसके बाद माइनस का cx इज इक्वल टू माइनस का 9/2x, x से कैंसिल और निगेटिव निगेटिव से कैंसिल, तो c इज इक्वल टू 9/2। ये आपका रिजल्ट रहा। ओके, और सेम यही प्रोसेस, यही क्वेश्चन जो है अगली बार के जो बच्चे 9 में एंट्री किए हैं उनके लिए भी यही प्रोसेस था, सेम यही क्वेश्चंस थे और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में ही था। यह लेसन समाप्त हुआ। जिस भी स्टूडेंट की पर्सनल क्वेरी उन तक पहुंचा दी जाएगी। अभी भी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जिनका लेसन 7 नहीं हुआ है वे 7 क्वेश्चंस को, 7 एक्सरसाइज को लगाते रहें, और जो ना आए आप पूछें, और लेसन 8 जो है नेक्स्ट डे स्टार्ट किया जाएगा। ओके, अगर मानवीय कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। आप प्रश्नों को सॉल्व करिए, और कोई डाउट होता है तो आप डाउट को आप हमको बता दीजिएगा, हम उस त्रुटि को सुधार करने की कोशिश करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।